1220 होऊन गेले ना पण. Okay, so in last lecture we have covered, at least I think our last lecture was on Wednesday. Okay, so in that we have covered different types of function argument. Yes or no? Yes or no? Hello, am I Yes. audible? Yes, Yes. sir. So positional argument, required argument, default argument, variable length argument, then keyword arguments, and some examples that we have covered regarding that specific topic. Okay, and also I have given one example regarding the same, regarding what variable length argument. You have to take one. What is that problem statement? Anybody? क्या था problem statement वो? Regarding variable length argument. Hello. Create a function and using variable length argument and to add the values passed to the function. Yes or no? Am I Yes, clear? sir. Yes. So have you done with this homework or not? So we will discuss this first and then we will move forward. So that problem statement is what? Write a program using variable length argument to add the values passed to the function. I will write a program using variable length argument to add values passed to function. Okay. So what is a variable length argument? Anybody tell me the syntax? Tell me the syntax. This is a syntax, na? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. So for sum, I have taken one variable, that is sum is equal to 0. Initially sum is 0. And as we know, we have to add the parameters that values pass to the functions. तो यहाँ पे multiple values pass करने हैं आपको run time में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे star लेना पड़ेगा. So star n1 is your variable length argument. Okay. So I will write here for loop as per our syntax. For I in, then what we have to write here? What you have to write? Tell me fast. Hello. वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पे? व्हाट यू हैव टू टेक? अभी एडिशन करनी है तो यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू कंसीडर? आर्या? Yes, sir. What you have to write here? For I in, this is actually homework that I have given. No, add it is a function. N1, na? Okay, sorry, N1, yes. Yes. So then what you have to do? Sum equal to sum plus I, na? Yes or no? Yes. And then what you have to do? Return sum. Return sum. Okay. And then we have to do here, what we have to do? Write a print statement. So double quote में sum is equal to. So what we have to do here now? So how many values we can pass here? Anybody? How many values we can pass here? कितने पास कर सकते हैं values यहाँ पे अभी? Tell me, as per your variable length argument concept.
हेलो हेलो, अरे लेक्चर लेना है या नहीं लेना है, बोलो मुझे जल्दी. If you are not giving the, I am asking the question, you are not giving the answers. What you have to pass here? Star N1 ना. N1 or we have to pass values directly ना. हाँ तसं पण चालेल. So what is the output then we will get here? Addition of all these Sum members of all that we the have numbers passed. in the list. Yes. Okay. 193. So यहाँ पे हमने actual में when we are creating the function at that time we are passed only one variable, but that variable we make it as a what? Variable length by using star. Then we are using for loop. We are tracing each and every element by using I counter, and we are adding that using some variable and return the sum. अभी यहाँ पे मैंने रन टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हैं. So I will pass only one value. So you will get the answer 23 still. If you pass 23 comma, जितने भी पास करोगे उस सब का सम निकल के आ जाएगा आउटपुट में. Okay. So यहाँ से मैंने स्टार निकाल दिया. What will happen now then? Then two numbers you cannot pass in the list. Yes, that error will be there because syntax ही चाहिए वहाँ पे change होगा. Normal syntax. Add text one position argument but two were given. Getting? जैसे मैंने यहाँ पे स्टार किया, तो इसका मीनिंग होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट. Am I clear? All of you clear with this? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Still, most of the students have not joined the lecture. 20 students are absent. 40 students. What is the problem? Can anybody? Why students are not joining the lecture? Hello? Don't know, sir. Sir, they might not be interested in your lecture. बोलो. सेकंड लेक्चर में कितने थे स्टूडेंट्स थे? मतलब 1040 के लेक्चर में. How many students are there in 1040 lecture? अरे आपको पता होगा ना, आप ज्वाइन थे ना लेक्चर में. सर सेपरेट लेक्चर हुए थे. सर 50 क्या? हाँ सेपरेट. सर उसमें सेपरेट हुए थे ना. हाँ सेपरेट में कितने थे बताओ मुझे. Regarding C division, how many students are present in that second lecture? For 50. Okay. And for B division? CS? 34. Hello? Sir. हाँ बोला. Yes, sir. कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे? 34. हाँ कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे माकाशी? 34. 35, 34. Okay, ठीक है. So you have to take some actions on these students, those who are absent. Okay, we will move forward with respect to, I am not wasting my time, and I will continue with the next topic. So next topic with respect to this unit number 3 is anonymous function, or we can call it as a what? Lambda function. So it is a very simple thing. Don't that is not what a tricky thing, or what we can say it as a what with respect to programming. Only one single line we can do it this code. So what is basically lambda function? So lambda function is a function in which we are not using basically a def keyword. Generally, while you are creating any user-defined function, in that we are using def keyword. Yes or no? What we have to use? Def keyword. Okay. But with respect to lambda function, we are not using any keyword. We are not using def keyword, but we are using one keyword,
that keyword is lambda keyword. So lambda keyword is used to create a anonymous function. Def keyword is not used to create any anonymous function, and this is usually not more than one line function. So single line में हम ये क्या करते हैं, we are doing this function. जैसे कि यहाँ पे देखो क्या किया है, r is equal to lambda. एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस है लैम्डा फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन के? एग्जीक्यूशन मतलब व्हाट? मतलब द फंक्शन का वर्किंग में क्या फर्क है, क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन इज आल्सो लाइक यूजर विल डिफाइन दैट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक, एंड दिस आल्सो द सेम सेम. Yes, same things are there, but what is difference? If you want to write what that def function, तो def function में हम addition का कोड करेंगे तो minimum 2 lines are required ना? How many lines? def की एक लाइन आएगी, उसके बाद अंदर एक रिटर्न का एक लाइन आएगा, और थर्ड लाइन किसका आएगा? हमारा कॉलिंग का एक लाइन आएगा. बट वही हमारा how many lines we are doing this? 2 lines ना? Okay. So number of lines are minimized, number of lines are decreased, and सारी जगह पे ये यूज नहीं होता है जनरली, बट सम ऑफ दिस थिंग्स यहाँ पे आपका कोड 1 लाइन में आपका खत्म हो रहा है लॉजिक. तो इन दैट केस ओनली यस. तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि लैम्डा फंक्शन इज अ फंक्शन यूजुअली नॉट मोर देन 1 लाइन. सो एक ही लाइन में आपका कोड होता है. तो एक ही लाइन में कोड होता है, मतलब व्हाट इज सिंटैक्स हियर? सो सिंटैक्स क्या होता है? लैम्डा, इन दैट आफ्टर लैम्डा व्हाट यू हैव टू राइट? आर्गुमेंट्स कोलन, बाय यूजिंग द आर्गुमेंट्स यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन. So I will do this one code regarding that. तो यहाँ पे हम करेंगे, I will write here comment. So first thing, that is lambda function. Lambda function. So this function it's created using lambda keyword. Okay, not by def keyword. One of the concept that is given by Python, which is not generally available in other programming language. So you can not compulsory to use lambda function. You can use normal functions also, but जहाँ पे आपको number of lines आपको एक ही expression में एक ही लाइन में आपका कोड हो रहा है, why you have to use that def keyword and use that specific function. So one example we can see. For example, मैंने एक sum variable लिया, उसको मैंने assign किया lambda function को, lambda. So दो arguments थे उसमें, for example x and y are the argument, and उसके ऊपर मुझे addition करना है x and y की. Okay. So this is your function. So print. तो डायरेक्टली उसको कॉल करेंगे. कॉल किसको करेंगे अभी यहाँ पे बताओ मुझे? व्हाट यू हैव टू कॉल हियर? सम इक्वल टू कॉमा करके व्हाट यू हैव टू कॉल? टेल मी. लैम्डा. क्या कॉल करना पड़ेगा? नो, लैम्डा को मैंने असाइन किया ना डायरेक्टली. सो व्हाट यू हैव टू कॉल? सम. यस, सम. एंड हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर? हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर? x and y. So directly put the values of x and y. Yes, 3,5. You will get output. Getting? Sum is equal to 8. और यही हम जब नॉर्मली प्रोग्राम इससे करेंगे, किससे करेंगे? डेफ से. तो कैसे होगा वो? किया ऑलरेडी, बताओ मुझे अभी. डेफ एड इन ब्रैकेट a कॉमा b, ओके, रिटर्न a plus b. So what you have to do here? Print in bracket add in bracket 3,5. Getting? So why क्या किया हमने यहाँ पे? यहाँ से इससे क्या हो गया हमारा? By using lambda function क्या हो गया हमारा? One line is एक लाइन पूरा एक लाइन कम हो गया, और वहां पे इंडेंटेशन की जरूरत नहीं देनी पड़ी. यहाँ पे डेफ आपको फंक्शन क्रिएट करो, उसके बाद आपको इंडेंटेशन प्रॉपर्ली देना है, देन यू कैन कॉल डेफ फंक्शन. सो इट इज जनरली यूज फॉर 1 लाइन का कोड होगा, 1 लाइन का कुछ एक्सप्रेशन होगा. इन दैट केस यू कैन यूज दैट स्पेसिफिक लैम्डा फंक्शन. एम आई क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस सर.
Yes, sir. Hello. Yes, sir. Am I clear? All of you get syntax of lambda function. So syntax क्या है यहाँ पे? यहाँ पे लिखता हूँ मैं. What is syntax? Hash syntax of lambda function. तो इसके ऊपर 1 लाइन या 2 लाइन का कोड होता है एग्जाम में. What is output for that? सिंपल कोड ऐसे ही कोड होते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन के ही कोड होते हैं, सिंपल कोड. तो सिंटैक्स इज लाइक दैट. कीवर्ड लैम्बडा followed by arguments colon and then your expression. Okay, all of you clear with the syntax? Lambda keyword followed by arguments that can be x, y, z or anything, and colon followed by expression. So और एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, लैम्बडा फंक्शन को यूज करेंगे ऑर्डिनरी फंक्शन के साथ. So वैसे भी कर सकते हैं हम. def फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिया f1 and in that one parameter we have passed and then we have done one thing, return in bracket lambda x colon x plus 1. So यहाँ पे एक ही लाइन में, अभी यहाँ पे x colon x plus 1 है तो वहां पे हमें पैरामीटर पास करना है x के वैल्यू, तो यहाँ पे हमें इसलिए मैंने y लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो वैल्यू वहां पे रिप्लेस हो जाएगा. So for example I have taken one value 100 and print एक स्टेटमेंट लेंगे और वहां पे मेंशन करेंगे इनिशियल वैल्यू a is equal to कॉमा a एंड उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे b is equal to f1 को यहाँ पे कॉल करेंगे f1 in bracket a and then print in this code. Now what is the output of this code? Tell me fast. Yes, sir. What is the output of this code? The B असणार 101. 101. B ची व्हॅल्यू किती असेल? 101. यस परफेक्ट. यस परफेक्ट. तो यहाँ पे हमने क्या किया, लैम्बडा फंक्शन को यूज किया है. ओके यहाँ पे कुछ तो कमेंट, हाँ यस दिस वन. So you can use lambda function with respect to what, that normal function also. Okay, am I clear? Yes or no? A is equal to 100 and after increment, after logic में क्या लिखा, lambda x की वैल्यू यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये पास नहीं करेंगे. So see what will happen. Getting? You are getting the error because उसको वैल्यू नहीं मिल रहा है. So while you are using the function with respect to that normal function, lambda function, तो वहाँ पे आपको पैरामीटर पास करने के लिए आपको यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे पास करते हैं f1 in bracket y. So return lambda x colon x plus y, x plus 1 and then you have to pass the value. If you are not passing, you will get the error because उसको वैल्यू नहीं मिल रहा है वहाँ पे. Am I clear? So यहाँ पे f1 of a मतलब क्या हो गया, y. So y यहाँ पे अंदर जाएगा, y is nothing but your, so यहाँ पे y आपको पास कर रहे हैं, कहाँ पे पास कर रहे हैं, लैम्बडा फंक्शन को. So x की वैल्यू 100, so 100 plus 1 101. So you will return the value, specific value is 101. So before increment your value is 100 and after increment your value is 101. So और एक एग्जांपल करके देखेंगे रिगार्डिंग लैम्बडा. स्मॉलेस्ट ऑफ 2 नंबर यूजिंग लैम्बडा फंक्शन. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल एक फंक्शन करेंगे. उसमें मैंने एक स्मॉल नाम का s1 नाम का एक वेरिएबल लिया, फंक्शन लिया. उसमें 2 पैरामीटर पास किए a कॉमा b एंड नॉर्मल लॉजिक, इफ a लेस देन b रिटर्न a. ओके एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, else return b. ओके अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम एंड डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. ओके तो सम और s1 इक्वल टू यूजिंग लैम्बडा फंक्शन, लैम्बडा x कॉमा
y colon x plus y, and difference d1 equal to lambda x comma y colon x minus y. Okay, and then we will print in bracket smaller of two numbers. Now tell me what we have to do here. क्या करना पड़ेगा? स्मॉल में क्या पास करना पड़ेगा हमें? लैम्बडा फंक्शन यूज करके कर रहे हैं हम ये. कैसे करेंगे ये? स्मॉल इन ब्रैकेट क्या करना पड़ेगा? बोलो मुझे. स्मॉल फंक्शन तो कॉल करना पड़ेगा हमें. स्मॉल नहीं, यहाँ पे s1 है. ओके, सो फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ पे पैरामीटर क्या पास करने पड़ेंगे हमें? व्हाट आर द पैरामीटर दैट वी हैव टू पास? बोलो जल्दी, फास्ट. a comma b. a comma b, नो. वहां पे हमने लैम्बडा फंक्शन यूज करके कुछ तो किया ना ऑपरेशन. xy नहीं, फंक्शन दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे, कि ऑलरेडी मैंने फंक्शन लिया है. s2 से मिलेंगे ना? हेलो, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस और नो? यस सर. हाँ सर. हेलो, स्क्रीन विजिबल और नॉट? यस, वैल्यू पास कर लिया. स्क्रीन इज विजिबल बट योर वॉइस थोड़ा सा बीच में ऐसा कट हो रहा है. ओके, नाउ इट इज क्लियर और नॉट? यस सर. ओके, सो d1 में मैंने पास किए दो वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 7, 8. सो टेल मी व्हाट इज द आंसर यू विल गेट. प्रेस करो प्रॉपर्ली अभी. व्हाट इज द आंसर यू विल गेट? If they are Hello, sir. asking the code, हाँ बोला. S2 is equal to lambda आपण x plus y घेतलं म्हणजे x2 से जे x plus y आहे ते 3 plus 2 5 होणार आणि x minus y आहे d1 से ते 7 minus 8 minus 1 होणार. पण d1 yes, perfect. That is the correct explanation given by Sriyash. Yes, लैम्बडा फंक्शन यूज करना था, इसलिए हमें कुछ तो उसके लिए ऑपरेशन करना था, इसलिए मैंने क्या किया, लैम्बडा x, y x plus y and lambda x, y x minus y. See here, फर्स्ट अभी s1 में दो पैरामीटर पास करने पड़े, s2 एक वैल्यू और एक d1 एक वैल्यू, जिससे हमें लैम्बडा फंक्शन से क्या मिलेगा, हमें s2 की वैल्यू मिलेगी पहले फंक्शन से, दूसरे से d1 की मिलेगी. ओके, सो सी हियर, और उसको मैंने s1 के अंदर पास किया. s1 इन ब्रैकेट s2 s2 इन ब्रैकेट 3,2. सो 3,2 मतलब x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? 3. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? 2. So what is the expression here? 3 plus 2. What is the value? Then what will be written? Yes. So s2 की वैल्यू क्या हो गई? 5. So यहाँ पे हैश करके मैं लिखता हूँ s2 in bracket 3 plus 2. So what will happen? 5. उसके बाद d1. So d1 in bracket. What is the value of x then? 8. Yes, 7 minus 8 equal to minus 1. So what will be the parameters will be considered by then s1? s1 in bracket क्या होगा? 5, minus 1. अभी ये कंपेयर होगा. So value, what is value of a? 5. And what is the value of b? minus 1. So what will be the answer you will get? -1. Smaller of two number? Yes, perfect.
Getting? Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. तो ये क्या है एक्चुअली स्मॉलेस्ट ऑफ नंबर हमने फाइंड आउट किया, बट इनडायरेक्ट वे से किया हमने, कुछ तो ऑपरेशन यूज किया है यूजिंग लैम्बडा फंक्शन। सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने के लिए मैंने बताया कि हाउ दैट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय दैट लैम्बडा फंक्शन। एम आई क्लियर? यस और नो? मतलब Yes, स्मॉलेस्ट sir. ऑफ टू नंबर तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग दिस लॉजिक। एम आई क्लियर? कर सकते हैं डायरेक्टली? Yes, sir. सो डायरेक्टली मैंने ऐसे किया तो उससे हमें पता, बट मुझे कंसेप्ट बताना था आपको कि हाउ दैट विल बी वर्क। सो S1 भी इन ब्रैकेट मैंने 3,4 किया तो विल गेट द आउटपुट ना, प्रिंट 3,4, प्रिंट इन ब्रैकेट 3,4, सो विल गेट द आउटपुट ना, 3 मिलेगा हमें आउटपुट ना, मिला? Yes, sir. ऐसा Yes, sir. सिर्फ आपको ये कंसेप्ट बताना था मुझे, विच कंसेप्ट? लैम्बडा वाला फंक्शन। तो मैंने इनडायरेक्ट वे से आपको करके दिखाया हो हाउ टू यूज दैट लैम्बडा फंक्शन। एम आई क्लियर? यस और नो? बट जनरली कैसे सिंगल लाइन का कुछ सिंगल लाइन में आपको कुछ कोड करना है, सो वहां पे आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट डेफ कीवर्ड यू कैन डायरेक्टली गो फॉरवर्ड। जैसे कि दो वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशंस करने, सिंपल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ इंक्रीमेंट करना है, इन दैट केस यू कैन यूज व्हाट? दैट स्पेसिफिक लैम्बडा फंक्शन। एम आई क्लियर? Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Okay. और डायरेक्टली एक एग्जांपल अलग वे से देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट को भी पास कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, सो प्रिंट ट्वाइस इक्वल टू लैम्बडा x कोलन x into 2, and then print, or directly you can, instead of doing this, directly print, write down print, जो already हमने किया already, ये first वाला, so I will write here print ओके वेट ब्रैकेट उसको यहाँ पे इस ब्रैकेट इज गेटिंग? यस और नो? एम आई क्लियर? Yes. मतलब यहाँ पे देखो एक लाइन में पूरा कोड हो गया हमारा विदाउट फंक्शन, हो गया ना? यही हमें नॉर्मली डेफ कीवर्ड से करना पड़ता, तो क्या करना पड़ता था हमें? व्हाट यू हैव टू डू? डेफ कीवर्ड लिखो, डेफ के बाद एक फंक्शन को नाम दो, एक्स पैरामीटर पास करो, देन रिटर्न एक्स इंटू 2 करो, देन प्रिंट अगेन करो, प्रिंट में फंक्शन को कॉल करो। एम आई क्लियर? So how many lines are required for that? 3 lines. So instead of using that 3 lines, you can use 1 line. Am I clear? Yes, sir. Yes or no? So this is all about regarding the lambda function. एक क्वेश्चन तो जनरली होता है, ऐसा कुछ तो कोड होगा आपको, and tell me the what is the output of following code, ऐसा आपको दिया जाएगा। और ऐसे ही कोड होते हैं, x into 2, x into 3, x cube वगैरह कुछ भी होता है। लाइकवाइज ऐसा कुछ तो होता है, सिंपल ऑपरेशन होते हैं, सिंपल कोड होता है। For 1 mark, definitely 1 question is there. Okay, am I clear? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Good. Okay, so we will move forward with respect to next topic. So this is all about the lambda function. तो सिंटैक्स आप एक बार ट्राई करो, एक बार एग्जांपल्स ट्राई करो। ये जितने भी एग्जांपल मैंने लिए आप खुद से भी कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट थिंग इज डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। ये सिंपल है, डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है इसमें ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स ऑलरेडी हमने कमेंट पढ़ा है, तो इट इज आल्सो वन ऑफ द कमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शंस। तो डॉक स्ट्रिंग, सो डॉक स्ट्रिंग हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग शॉर्ट फॉर्म में। So doc strings are nothing but serve as the same purpose of that of comments as they are designed to explain the code. However, they are more specific and have proper syntax. तो उसका syntax हम देखेंगे यहाँ पे। Def, f name that is function name,
in bracket parameter colon, and then we will see यहाँ पे सिंगल कोट में मैं क्या करता हूँ, डबल कोट में एक कमेंट लिखता हूँ. So function docstring, function underscore docstring, function docstring, then followed by I will write something inside that function, that is function statement. Okay, and then return, कुछ रिटर्न करना होगा तो रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न expression, bracket close. So actually this is a syntax of what? Docstring. So syntax समझ में क्या करना है आपको? डेफ कीवर्ड यूज कर, नॉर्मल फंक्शन होता है, सिर्फ वहां पे आपको कुछ कमेंट डालना है, तो कमेंट यू कैन राइट इट बाय यूजिंग डबल कोट, सिंगल डबल कोट में. ओके, देन फंक्शन स्टेटमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट. ओके, तो उसका एक एग्जांपल देखेंगे कैसे होता है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डेफ कीवर्ड यूज किया, एक फंक्शन क्रिएट किया f1, इसमें अभी कुछ पैरामीटर नहीं डाल रहा हूँ, एंड आई विल राइट वन थिंग, दिस इज डॉक्स्ट्रिंग. फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए हम जनरली कमेंट लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, तो एक्चुअली एक टाइप का कमेंट ही है बट विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन है. एंड देन आई विल राइट प्रिंट इन ब्रैकेट हेलो, एंड वी विल रन दिस. f1 को कॉल किया मैंने. सो व्हाट इज आउटपुट यू विल गेट नाउ? टेल मी व्हाट इज आउटपुट? हेलो. यस, हेलो. परफेक्ट. बिकॉज वो डबल कोट में जो लिखा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ व्हाट? कमेंट. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, If sir. you want to add multi-line comment or multi-line docstring, simply what you have to do, 3 double quotes देने आपको, and this is a docstring. Welcome to Python program. ओके, अभी यहाँ पे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डॉक्स्ट्रिंग, मतलब डॉक्स्ट्रिंग को आपको डिस्प्ले करना है, तो दैट कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम. हाउ टू एक्सेस दैट स्पेसिफाइड डॉक्स्ट्रिंग फ्रॉम योर फंक्शन. सो उसके लिए यहाँ पे मैं आई विल राइट हियर इन कमेंट. तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है. प्रिंट के अंदर आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम दैट इज हियर f1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर doc डॉट. So what is the attribute that you have to use to access docstring? We use attribute. Which attribute? Tell me. Tell me fast. आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है. Which attribute that we have to use to access docstring? Underscore underscore doc, 2 time underscore. Am I clear? Yes or no? See the output. Getting? Yes or no? Hello? Yes, getting. Yes, sir. Yes. So this is nothing but what docstring generally क्या है, जैसे नॉर्मल कमेंट यूज करते हैं वैसे ही होते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन है तो उसको एक्सेस भी कर सकते हैं. So एक्स के ऊपर जनरली 2 क्वेश्चंस होते हैं. So docstring फॉर व्हाट पर्पस यू हैव टू यूज, so that is specific function, मतलब फंक्शन में हमने अंदर बॉडी में क्या लिखा है, फॉर एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट यू कैन यूज दैट docstring. Again next exam is docstring can be accessed by which attribute of that function. So कौन सा attribute यूज होता है, यही 2 क्वेश्चंस होते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा इसके ऊपर. Underscore doc underscore. Which attribute? Tell me. Underscore underscore doc underscore underscore, 2 time underscore is there. So all of you try this. Yes. Getting? Am I clear? Yes, or sir. no?
बट सिंगल लाइन कमेंट में हम क्या करते हैं, कमेंट में सिंगल लाइन कमेंट होगा तो कैसे देते हैं हम, हाउ वी हैव टू गिव सिंगल लाइन कमेंट, वन डिफरेंस इज देयर, हैशटैग सिंगल लाइन कमेंट कैसे देते हैं हम, हाँ हैशटैग यूज करते हैं। पर यहाँ पे मैंने क्या किया था, व्हाट आई हैव डन हियर, सी हियर, क्या किया था हमने, यस डबल कोट्स में हमने उसको मेंशन किया था। एम आई क्लियर? सो डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग के ऊपर विच, और यही होता है क्वेश्चन, दिस वन अंडरस्कोर डॉक वाला, तो एक्सेप्ट डॉक स्ट्रिंग टू प्रिंट और टू प्रिंट दैट स्पेसिफिक कमेंट, और कमेंट भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, बट उसके लिए उन्होंने कमेंट अलग पार्ट है, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली फंक्शन के लिए उन्हें बोला डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, और उसे बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। सो डॉक स्ट्रिंग हमें गेट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, फंक्शन नेम फॉलोड बाय डॉट फॉलोड बाय दैट स्पेसिफिक अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। एम आई क्लियर? yes or no? Yes, sir. Yes or no? So this is all about what, that specific doc string and that specific lambda function। होमवर्क क्या दिया था मैंने, और टेल मी, एक तो होमवर्क डिस्कस किया था मैंने, और क्या दिया था, क्या होमवर्क था, Write a program to calculate circumference of the circle using default argument. यस यस किया क्या सबने वो, have you done that, all of you done that? अरे किया क्या आपने, वो प्रोग्राम किया है सरकमफरेंस वाला, have you done that circumference program? ठीक है, होमवर्क देने का कुछ मतलब ही नहीं फिर, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला था ना प्रोग्राम, यूज डिफॉल्ट आर्गुमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन। ठीक है, इनपुट इन ब्रैकेट एंटर रेडियस, then def ऐसे करना है ना, yes or no, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला, getting, all of you getting the output? हाँ, तो हाउ दैट वी हैव परफॉर्म, सिंपली मैंने बोला था आपको कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंसेप्ट यूज करके आपको सरकमफरेंस निकालना है, तो सिंपली क्या करना था आपको, रेडियस आपकी ऑब्वियसली डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या कर सकते हैं, पाई आप कांस्टेंट रख सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक वैल्यू आप पहले असाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, r इज इक्वल टू एक रेडियस एंटर किया मैंने, उसके बाद सर्कल का CIR नाम का एक फंक्शन लिया, उसमें r एक पैरामीटर पास किया और एक पैरामीटर पाई पास किया। सो पाई की वैल्यू मैंने 3.14 एट द डेफिनेशन टाइम में मैंने क्या किया, डिसाइड करके रखा है। सो इसलिए मैंने C1 इज इक्वल टू क्या किया, 2 इंटू पी इंटू PI इंटू R, ओके, एंड देन प्रिंट C1, एंड देन CIR जब कॉल किया तब मैंने क्या वैल्यू पास किया, व्हाट वी हैव पास, एक ही पास किया ना, क्या पास किया पैरामीटर, टेल मी, हेलो, अरे बोलो ना कुछ तो, व्हाट इज द पैरामीटर आई हैव पास एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, यस R, तो R पास करने से क्या हो गया,
आर की वैल्यू 3 पास की, पाई की वैल्यू उसने बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर की 3.14, और उसका जो भी आंसर है वो क्या मिला मुझे 18.84। एम आई क्लियर? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. सो कुछ तो बोलो ना बाकी लोग। Sorry. और यहाँ पे मैंने आर कॉमा फॉर एग्जाम्पल कुछ तो वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 5.6, गेटिंग? यहाँ पे आंसर चेंज हुआ 3 से करके देखिए, तो 3 से हमारा 18 पॉइंट समथिंग आया था, सो 33.59 आया। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे उसने क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू को उसने क्या रिप्लेस किया, व्हाट दे हैव रिप्लेस, पाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई? यस 5.6, यस परफेक्ट। सो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ट्राई द होमवर्क रिगार्डिंग डिफॉल्ट एंड दैट वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। बाकी तो आपको सिंपल है, वो आर्गुमेंट रिक्वायर्ड आर्गुमेंट तो सबको पता ही कि जितने फंक्शन में आपने पैरामीटर लिए उतने आपको एट द टाइम ऑफ कॉलिंग लेने, और दूसरा था कीवर्ड आर्ग, उसमें आपको सिर्फ सीक्वेंस चेंज करके देखना था। बट दिस टू थिंग्स यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, करके देखना ही पड़ेगा आपको, देन ओनली यू विल गेट क्लियर विद दैट स्पेसिफिक कांसेप्ट। तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. बाकी स्टूडेंट क्या है? अशिता, समझ में आ रहा है आपको? अशिता? यस। अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत पगार? हाँ सर, हाँ सर, समझते का? हो सर। ओके। अभिमन्यु, अक्षरा, अक्षरा Yes, sir. समझते का? Oh, sir. ओके। देन अंश, अंश वर्मा, आर यू देयर अंश? यस सर। ओके। देन अथर्व गाडगिल, समझ में आ रहा है ना? ऐसे लग रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि आप आंसर भी नहीं दे रहे। होमवर्क था, होमवर्क आपको एक्चुअली 2 साइड कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, बिकॉज दैट होमवर्क इज अ पार्ट ऑफ, यू हैव टू डू इट एट योर होम एंड वी आर डिस्कसिंग हियर ओनली, और डिस्कस कर रहे हैं उसको सिर्फ, तो आपको ये चीजें करनी है चाहिए। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेगुलर डूइंग, but some of the students are not doing the homework. नहीं तो कुछ लेक्चर लेने का फायदा ही नहीं है मुझे। मैं क्या करूंगा, मैं लेक्चर लेने के से, यू कैन डू इट योर ओन। मैंने आपको सब मटेरियल दिया, यू कैन ट्राई इट योर ओन। टाइप करो कोड, आपको करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। कुछ फायदा नहीं है ऐसा, कुछ टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं है। यू हैव टू रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड आल्सो। सो लैम्बडा फंक्शन समझ में है सबको? कैसे होता है सिंटैक्स उसका? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ लैम्बडा फंक्शन? वेरिएबल उसको लैम्बडा कीवर्ड एंड देन व्हाटएवर expression we have to execute, and then printing that variable assigned. यस। तो लैम्बडा फंक्शन जनरली जहाँ पे वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे आपका लॉजिक 1 लाइन में खत्म हो सकता है, मतलब यू कैन, आपका लॉजिक का स्कोप 1 लाइन का है, तो वहां पे आपको 2-3 लाइन का फंक्शन क्रिएट करके करने की जरूरत नहीं। सिंपली यू कैन राइट लैम्बडा फंक्शन एंड यू कैन पास इट डायरेक्टली प्रिंट। एक लाइन में हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि मुझे x to the power 2 करना है, तो why we have to write that all things, then function name, then we have to write return x to the power 2 and then print in bracket again function call करना है। Simply what you have to do, print in bracket lambda x colon x into 2, you will get the output for that specific lambda function. Okay, and you can try it by using what, by using other functions also। मतलब जो हमने नॉर्मल फंक्शन देखे थे उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया S1 का एक फंक्शन लिया है, उसमें हमारा लॉजिक लिखा है लेस देन और इक्वल टू का,
उसके बाद S2 और D1 नाम के लैम्बडा फंक्शन को मैंने क्रिएट किया है, लैम्बडा फंक्शन फॉर S2 एंड लैम्बडा फंक्शन फॉर D1, और वो यूज करके मैंने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उसकी वैल्यू वहां पे पास की। सो दैट S2 एंड D1 आर द पैरामीटर फॉर दैट S1। सो S2 कैलकुलेट करने के बाद मुझे वैल्यू मिलेगा रिगार्डिंग A, एंड D1 कैलकुलेट करने के बाद मुझे वैल्यू मिलेगा B का, और वो पूरा होने के बाद मुझे मिलेगा रिटर्न A और रिटर्न B। एम आई क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस और नो? एटलीस्ट यस और नो तो बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद डॉक स्ट्रिंग देखा था। व्हाट इज द यूज ऑफ डॉक स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शंस? इट इज सेम एज दैट ऑफ व्हाट? Comment. Comment. Yes, perfect. It is same as that of comment, but only difference is we can access those comment by using doc _ doc with respect to function. मतलब _ doc यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वो कमेंट को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। So for that purpose we can use that specific doc string in your function program. And उसके बाद बाकी वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट वगैरह वो पार्ट हमने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज रिकर्सिव फंक्शन। एक्चुअली वो टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बट लास्ट टाइम उन्होंने फंक्शन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए हम उसको कवर करेंगे। सो रिकर्सिव फंक्शन इट इज आल्सो सेम एज दैट ऑफ नॉर्मल फंक्शन, बट ओनली वन थिंग वी आर डूइंग हियर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट फंक्शन? So recursive function means that it is one of the function, the function which call itself, it is called as recursive function. The function which call itself, that type of functions are called as recursive function. तो यहाँ पे देखो आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 नंबर्स, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो ये स्पेसिफिक जगह पे हम यूज कर सकते हैं जहां पे हमें ये कर सकते हैं, जैसे कि जीसीडी ऑफ 2 नंबर के लिए रिकर्सिव फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिबोनाची सीरीज के लिए हम फंक्शन यूज कर रिकर्सिव फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स स्पेसिफिक सिंटैक्स नहीं उसका, बट वी कैन डायरेक्टली कॉल दैट स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड दैट फंक्शन। देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया फैक्टोरियल का, तो फैक्टोरियल का फंक्शन मैंने एक पैरामीटर पास किया n, उसके बाद मैंने उसका लॉजिक लिखा है इफ n इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1, and then else में मैंने लॉजिक लिखा है what is the logic that I have written n into factorial in bracket n minus 1. So what is the meaning of this line? What is the meaning of this line? Can anybody? As per our definition. तो जैसे मी है क्या लेते हैं ना? Yes, मैंने क्या किया है यहाँ पे? We have called that factorial inside that factorial. मतलब फंक्शन जो क्रिएट किया फैक्टोरियल उसके अंदर ही फैक्टोरियल को कॉल किया है। सो कॉल क्यों करना है? बिकॉज हमें वो आंसर चाहिए। फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर में कैसे करते हैं हम? n into n minus 1 करते जाते हैं, तो विल गेट द आउटपुट लाइक 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ओके, सो देखो यहाँ पे अभी व्हेन यू आर रनिंग दिस कोड विल गेट आउटपुट। तो फैक्टोरियल को जनरली हमने और नॉर्मल प्रोग्राम भी देखा था, करके देखा था। ओके, तो सी हियर फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन लिया है। इन दैट फैक्टोरियल वी हैव पास वन पैरामीटर n, जिसका हमें क्या करना है? फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 1 होगा तो फैक्टोरियल 1 ही होता है, एल्स n into factorial of n minus 1. So n means what is here n? जैसे कि मैंने यहाँ पे इनपुट लिया 5, so 5 into factorial of n minus 1 क्यों किया मैंने यहाँ पे? Why I have done for n minus 1? Why? Because that is the need of already a problem statement ना। 5 के बाद मुझे क्या चाहिए? वैल्यू 4 चाहिए ना। Am I clear? Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. So 4 के बाद मुझे 3 चाहिए। So likewise you will get the output directly, हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पे 120। Invalid syntax पे wait. Yes, क्या हो गया यहाँ पे?
डेफ Define. यस डिफाइन नहीं किया था। गेटिंग फैक्टोरियल 120 कैसे हो रहा है वो? देखो पहले फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया तो उसमें वैल्यू क्या पास किया मैंने 5, तो 5 इज इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है, तो ऑब्वियसली रिटर्न 1 नहीं होगा, वो डायरेक्टली एल्स में जाएगा। एल्स में रिटर्न n इंटू n की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? 5. 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। 5 की n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5 माइनस 1 कितना हो गया? फैक्टोरियल ऑफ 4। अगेन फंक्शन के अंदर जाएगा, फंक्शन के अंदर जाएगा। सो फॉर पहले 5 इंटू 4 निकालेगा वो, 5 इंटू 4 कितना होगा? 20। सो 20 के बाद अभी अंदर जाएगा, फिर से वो 4 के लिए कंसीडर, 4 के लिए कैलकुलेट जब तक n फंक्शन equal एग्जीक्यूट to होगा। 1 4 नहीं के बाद आएगा तब तक 20 वो इंटू function 4 के बाद में क्या जाएगा। वैल्यू होगा? व्हाट इज वैल्यू? yes yes so what is your last value? then you will get directly हमें क्या वैल्यू मिलेगा? 120। am I clear? yes or no? yes। अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इनपुट ही 1 दिया तो व्हाट विल हैपन? वो रिकर्सिव फंक्शन ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगा? यू विल गेट द आउटपुट ना। व्हाट इज आउटपुट? यू विल गेट Yes. 1 बिकॉज आवर वैल्यू इज 1। सो वहां पे उसने चेक किया 1 इज इक्वल टू 1, रिटर्न 1 एंड रिटर्न 1 fact is equal to factorial of 1, so fact मैंने डिस्प्ले किया उसको, you will get the output of fact of that given number is what? that specific 1, because वहां पे हमने डायरेक्टली कंडीशन हैंडल किया। अदरवाइज यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं किया रहता। so what will happen? क्या होगा इससे? ठीक है, क्या हो गया? factorial number is 1, why? because वो 1 ही प्रिंट हो गया n। नेक्स्ट वैल्यू हाँ यस नहीं आई विल चेंज। देखो क्या हो गया? मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीड इन कंपैरिजन। एम आई क्लियर? मतलब उसको कंडीशन ही समझ में आ रहा है क्या करना है आगे। एम आई क्लियर? तो फैक्टोरियल की हमें लॉजिक क्या है, उसको 1 से कम करना ही पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? यस। यही हम अभी यही सारे प्रोग्राम इससे होते नहीं है। सम ऑफ द स्पेसिफिक प्रोग्राम कैन बी डन बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। तो इसमें से एक तो मैंने बताया आपको फैक्टोरियल। तो आपको अभी होमवर्क करना है जो आपको देने वाला हूं, दैट इज योर राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पहले ये आप ट्राई करो घर पे, उसके बाद वो ट्राई करो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। Fibonacci series using recursive function. Can anybody tell me what is the Fibonacci series? Yes, sir. 1 plus 2, 3. So 1, 3, फिर 3 plus 4, yes, 7. yes, yes. पहला for example starting from 0 and 1, तो 0 plus 1 1, 1 के प्रीवियस क्या है 1, 1 plus 1 2, 2 के पहले क्या है 1, 1 plus 2 3, 3 के पहले क्या है 2, 2 plus 3 5, 5 के पहले क्या है प्रीवियस नंबर 3, 3 plus 5 8, 8 plus 5 11। Likewise, that type of series is nothing but what? Fibonacci series. तो यहाँ पे आपको हाँ बताओ। Addition of first two terms, मतलब the terms before the term is the next term. Yes, 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 yes. That is nothing but your Fibonacci series. But यहाँ पे क्या करना है आपको? मैं प्रॉब्लम स्टेट में समझ में आपको Fibonacci series करना है, बट कैसे करना है? आपको पहले 5 नंबर या 10 नंबर की Fibonacci series की ऐड करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको Fibonacci का जो भी पैरामीटर है वो पास करना है n की वैल्यू पास करनी। फॉर एग्जांपल मैंने 5 पास किया, n की वैल्यू कितनी पास की 5। सो 5 पास किया मतलब मुझे आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट 5 Fibonacci नंबर्स मुझे प्रिंट होने चाहिए। मतलब फर्स्ट 5 Fibonacci नंबर क्या प्रिंट होने चाहिए? एनीबॉडी क्या प्रिंट होने चाहिए? 1 2 3 5 1 1 1 1 2 3 5। Yes, 1 1 2 3 5. If I have entered the n value is 10, तो मुझे क्या आना चाहिए? 1 1 2 3 5 8 11 likewise. Am I clear? Am I clear? Yes.
Am I clear? What is the problem statement? All of Yes, you sir. checking? Yes. Yes. So try it at your home and do the code for that specific Fibonacci series by using recursive function. Am I clear? Okay. So what are the topics that we have covered in today's session? और एक लेक्चर है उसमें हम मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं है रिकर्सिव फंक्शन, बट एक बार क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने वो टॉपिक कवर किया है. अभी आप एक बार सिलेबस कॉपी देखो, उसमें आपको नहीं मिलेगा कहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन. बट जनरल क्वेश्चंस क्या होते हैं? व्हाट इज अ रिकर्सिव फंक्शन? तो द फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज रिकर्सिव फंक्शन. एम आई क्लियर? यस और नो? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So try Fibonacci series program at your home and send me the screenshot of that specific program that you have done at your home. Okay? Then lambda function का सबको समझ में आया? Lambda function का कुछ भी एक एग्जांपल ट्राई करो आपके हिसाब से. यूजिंग प्रिंट पिक डायरेक्टली कर सकते हैं या थर्ड वेरिएबल लेके भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके. उसके बाद डॉक स्ट्रिंग का एक एग्जांपल ट्राई करो घर पे. उसके ऊपर क्वेश्चन तो मैंने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं. उसके बाद रिकर्सिव को मैंने तो आपको अभी बताया कि दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम यू कैन डू फॉर रिकर्सिव फंक्शन. एक तो मैंने फैक्टोरियल के बताया आपको, यू कैन ट्राई फॉर फिबोनाची सीरीज. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes. Yes or no? Yes, sir. So another one lecture is there at 2:30. So attendance is mandatory. So at that lecture, in that lecture, I will take the attendance. उसमें जो represent होंगे उसकी attendance इस lecture की भी लगेगी. Am I clear? So आपको attendance compulsory है. Next lecture में जो present होगा उसकी attendance लगेगी. Am I clear? Yes or no? Yes. So we will stop here for this session. Okay. So thank you very much for attending the lecture.